Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Starting the session with name of Allah, who is not only the sustainer of the concept of sustenance, but author of our existence as well. Dear students, in this recorded lesson, we are about to start our discussion on Pakistan movement during 1927 to 1939, which is a very integral part of your section 2 of Pakistan Studies P1. As I've told you in the physical lessons, that section 2 means 50 marks of your Pakistan studies out of the 75 marks you have to attempt for your Pakistan studies P1's exam. 90% of the past papers are reflecting us, and the last 20 years of experience is also depicting the same story कि अगर आपको सेक्शन 2 आता है, चैप्टर नंबर 6 ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट मेनली फ्रॉम 1885 टू 1927, chapter number 7 Khilafat movement, chapter number 8 Pakistan movement from 1927 to 1939, then the decisive years of the Pakistan movement from 1939 to 1947. So there are going to be very bright chances that you are going to attain your 50 marks out of 75 without any hesitation or trouble. So, bete, recently we were been discussing chapter number 8, which is mostly covering the stage of Pakistan movement from 1927 to 1939. And we have discussed in our physical lessons that how far Pakistan movement developed in this specific phase by discussing different developments of this specific bracket of Pakistan movement. और हमने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स जिनमें जिन्ना ने दोबारा अपनी जो बेसिक पॉलिटिकल डिमांड्स थी, मुस्लिम ओरिएंटेड पॉलिटिकल डिमांड्स थी, वो प्रेजेंट की, एंड ही फेस्ड द सेम रिएक्शन फ्रॉम आईएनसी बिकॉज आईएनसी रिजेक्टेड द दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, जिसमें जिन्ना ने काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और अपनी जो मेन और कोर डिमांड थी 1905 से मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, उससे भी बैक ऑफ करते हुए जिन्ना नजर आए अंडर द सर्कमस्टांसिस और द फीचर्स ऑफ द दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स. लेकिन continuously the arrogant and the self-centered attitude of Congress did not let basically British to answer the question of Indian governance. और 1927 से हम देखते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो एक न्यू डायमेंशन में एंटर होती है, और इसमें हमने नेहरू रिपोर्ट को देखा. नेहरू रिपोर्ट को हमने एज अ हिंदू ओरिएंटेड पॉलिटिकल चार्टर ऑफ डिमांड्स एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट हाउ इंडिया शुड बी गवर्न के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व किया. Nehru report was totally ignoring the basic political demands of the Muslims of India, even though that was suggesting कि how India should be governed. लेकिन जो मुस्लिम political orientation थी, that was been missing in the Nehru report. Joint electorates versus separate electorates, Hindi as a national language of India, then strong federation with weak provinces, whereas Muslim League was demanding strong provincial autonomy and weak federation in India. ये बेसिक controversies थी जो नेहरू रिपोर्ट की रिजेक्शन की रीज़न बनी. In response, we have gone through this idea that Jinnah came forward with his 14 points, which were the political solution of India as per the perception of Muhammad Ali Jinnah was in context to answer the question how India should be governed. बेटे, जो बेसिक चीज़ है जो आपने सेक्शन 2 में अपने माइंड में रखनी है इस सेक्शन को इजीली एस करने के लिए, वो ये है कि देयर वर ओनली टू बेसिकली पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स व्हिच वी नीड टू कवर, दैट व्हाट वर दीज डेवलपमेंट्स एंड हाउ दीज डेवलपमेंट्स वर इम्पैक्टिंग द पाकिस्तान मूवमेंट. और आपका जो एग्जामिनर है 99.9% वो आपकी इसी चीज़ को टेस्ट करेगा कि जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, जैसे मैंने आपको अपने तमाम लेसन्स में बताया कि the only question in front of the British was that how India should be governed after the War of Independence, and all these developments basically were attracting towards, or they were being centered towards a single question, and that was the question of Indian governance. और इसी के साथ मैंने आपसे अपने फिजिकल लेसन्स में और डिफरेंट सेशंस में ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान मूवमेंट इज़ नेम ऑफ ऑल दीज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स of Indian history under the British rule from 1905 to 1947. Simplistic way में अगर आपसे कोई पूछता है कि how Pakistan was created, your answer must be very simple, that Pakistan was created under the various political developments or as a reaction of various political developments which took place in Indian history or the British rule in India during 1905 to 1947. जिन्ना ने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स दिए,
विच वर इफेक्टिवली एंड इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। मैं तो समझता हूँ कि एक बड़ा ही बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट था, एक बड़ा ही बैलेंस्ड प्रपोजल था जिन्ना के 14 पॉइंट्स में, जो कि हिंदूज़ के भी इंटरेस्ट को कम्प्लीमेंट करता था, अदर कम्युनिटीज़ को भी कम्प्लीमेंट करता था, और मुसलमानों के लिए तो डेफिनेटली वो फेवरेबल था। लेकिन जो एटीट्यूड और जो नेगेटिव एटीट्यूड कांग्रेस ने दिखाया, दैट वाज द रीज़न व्हाई जिन्ना separated itself and the party even Muslim League separated its ways from the INC। और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की आखिरी कोशिश थी जिन्ना के 14 पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉसिबली हो सकती थी, दैट वाज आल्सो गोइंग टू बी वेंड आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना बाय कांग्रेस। अब 1929 का फेज आ चुका है पाकिस्तान मूवमेंट में, और जिन्ना के 14 पॉइंट्स रिजेक्ट हो चुके हैं, बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन गवर्नेंस इज देयर। जिन्ना के 14 पॉइंट्स आपको याद नहीं करने होते सारे के सारे, बिकॉज योर एग्जामिनर विल आस्क यू द फ्यू फ्यूचर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें वो आपको स्टेटमेंट देगा, डिस्क्राइब दी particular features of the 14 points of Jinnah. So if you have learned and if you have the idea about 5 to 6 14 points of Jinnah में से जो basically major points हैं, जैसे separate electorates हैं, उसके बाद फुल रिलीजियस लिबर्टी है, उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल अटोनमी है, उसके बाद 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द लेजिस्लेटिव असम्बली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली, दैट इज़ द डिमांड, separation of Sindh, reforms in NWFP and Balochistan on parallel grounds as the other provinces have been witnessing under the British rule। ये कुछ डिमांड्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद कर सकते हैं, और इसके थ्रू यू कैन इफेक्टिवली आंसर योर क्वेश्चन अबाउट द 14 पॉइंट्स ऑफ जिना। येट अगेन इम्पैक्ट्स लिखना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट थे मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए, और किस तरह का इम्पैक्ट किया इन 14 पॉइंट्स ऑफ जिना ने, क्योंकि मैंने आपको अपने फिजिकल लेसन्स में बताया भी था। एक तो मुसलमानों को उनकी पॉलिटिकल नेसेसिटीज़ के बारे में अवेकनिंग हुई, उनको समझ आया कि क्या पॉलिटिकल डिमांड्स मुस्लिम कम्युनिटी को बेटर कर सकती हैं अंडर द ब्रिटिश रूल, कैसे ये डिमांड्स जो हैं वो मुस्लिम्स की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को ज़्यादा सिक्योर कर सकती हैं इन द फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। दूसरी जो चीज़ थी, दैट वाज दी बेसिकली इम्पोर्टेंस के जो नेहरू रिपोर्ट थी, अगर इस तरह का कोई प्रपोजल ब्रिटिश अडॉप्ट करते तो डेफिनेटली हिंदूज वर बिंग गोइंग टू बी गेटिंग मोर डोमिनेशन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और जो शिवराज अगर लेट सपोज फ्यूचर में ट्रांसफर होता टुवर्ड्स द इंडियन, तो आईएनसी ज़्यादा गेन करती शिवराज के ट्रांसफॉर्मेशन से भी। तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स जो थे, एक तो ये मुस्लिम्स पॉलिटिकल राइट्स की डिफेंस में थे, दूसरा ये काउंटर करने के लिए थे आईएनसी की रिपोर्ट को, तीसरी जो इसकी सिग्निफिकेंस थी वो ये थी कि एक परफेक्ट सोल्यूशन थे सब कॉन्टिनेंट के प्रॉब्लम्स का, और जो प्रॉब्लम था वो मेनली था कि हाउ इंडिया शुड बी गवर्नड। अब जिन्ना के 14 पॉइंट्स भी रिजेक्ट होते हैं, जिन्ना पार्टिंग ऑफ द वेज की अनाउंसमेंट करते हैं, और जिन्ना इंडिया से इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं 1929 में, और मैंने आपको इनकी दो रीजंस बताई थी। एक तो जिन्ना की डेथ, वाइफ की डेथ थी रति जिन्ना की, दूसरी जो थी वो नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस ऑन दी 14 पॉइंट्स और द प्रीवियस दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स भी थी, जिससे जिन्ना काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, और जिन्ना ने थोड़ी देर के लिए 1929 से 1933 के फेज़ में आइसोलेशन अडॉप्ट की फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल कल्चर एंड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब 14 पॉइंट्स भी रिजेक्ट होते हैं इवेंट बाय इवेंट, हम अपने 1947 के क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे सेक्शन 2 के अंदर। अब 1929 आ चुका है, और अभी तक कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा नहीं सामने आया जिसे तमाम स्टेक होल्डर्स जो इंडिया के हैं दे कैन फील सेटिस्फैक्ट्री एंड दे कैन enjoy their political existence in subcontinent in a soothing way। अब फाइनली ब्रिटिश डिसाइड करते हैं 1930 में, they are going to call all the major political stakeholders of India to England through calling the round table conferences। Round table conferences जो है बेटे, let me tell you that in a very clear way, it has been the most favorite topic of your examiner in the past papers। और बहुत दफ़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एग्जामिनर ने आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए प्रीवियस डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस हैं पास पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनमें इसको साइट किया। और मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली इट इज़ द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर टॉपिक एवर गिवन इन द लास्ट 20 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ P1। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को समझना, इनकी सिग्निफिकेंस को ग्लोरीफाई करना फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट, इट इज़ आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर्स। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, क्या इनके पॉजिटिव्स हुए, क्या इनके फेलियर्स हुए, इधर इट वाज एबल टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन गवर्नेंस और नॉट, आज के सेशन में हम मेनली इस पे बात करेंगे।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेटे उसी तरह से एक अटेम्प्ट थी। अब हिंदूज नेहरू रिपोर्ट के थ्रू सामने आते हैं, जिन्ना 14 पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में उनके सामने आते हैं, पॉलिटिकल सोल्यूशन देने के कॉन्टेक्स्ट में। और ये दोनों चीज़ें फेलियर्स की तरफ जाती हैं। तो ब्रिटिश इनिशिएटिव लेते हैं कि अब वो इंटरवीन करेंगे और कुछ ना कुछ इंडिया के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए डेवलपमेंट या कोई ऐसी निगोशिएशन बेस्ड जो है वो इवेंट ऑब्जर्व करने के कॉन्टेक्स्ट में मैनेज करेंगे चीज़ों को, ताकि इंडिया का जो गवर्नेंस का इशू है दैट कुड बी रिजॉल्व, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स कॉन्टिन्यूस पॉलिटिकल स्ट्रगल के गुजर चुके थे, जहां पर ब्रिटिश को न्यू टाइप्स के चैलेंजेस भी फेस करना पड़ रहे थे बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ हिंदू एक्सट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज लाइक स्वराज पार्टी, होम रूल लीग, महासभा, और आईएनसी भी जो थी वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, इस तरह के मोमेंटम्स को बिल्ड करती जा रही थी। और ऑन द सेकेंड हैंड मुस्लिम्स भी जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कॉन्टेक्स्ट में और खिलाफत मूवमेंट के बाद से मुसलमानों के अंदर भी एक जो अर्ज थी दैट वाज बिन राइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ब्रिटिश ये चाहते थे कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो इंडिया की जो गवर्नेंस का इशू है उसका कोई ना कोई पॉजिटिव वे आउट निकाला जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1930 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अरेंज की in England. Royal Gallery of House of Lords was the destination where these 3 round table conferences were being held। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की क्रिएशन में, क्योंकि हिंदूज का फार्मूला रिजेक्ट हुआ, मुस्लिम्स का फार्मूला रिजेक्ट हुआ। अब आप ब्रिटिश की जो है बेसिकली इंटरवेंशन देखने जा रहे हैं, और कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर ने मजीद एक्सेलरेट किया पाकिस्तान मूवमेंट के आइडिया को, ये देखने जा रहे हैं। क्योंकि इसके मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी जो आउटकम थी वो इलाहाबाद एड्रेस ऑफ इकबाल थी, और नाउ और नेवर चौधरी रहमत अली का जो एक पम्फलेट था वो थी, जो मुसलमानों को फिर डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट होमलैंड आफ्टर द फेलियर्स ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो लेट्स सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का पास पेपर एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्यों ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा बार बार कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है व्हेन यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फॉर योर सेक्शन 2, एज द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आर टेलिंग अस। ये बहुत वाइटल पार्ट रहेगा आपकी फ्यूचर असेसमेंट्स का। और इसके लिए हम मेनली जो यूज़ करेंगे लिटरेचर दैट वुड बी बेसिकली बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन बैंक्स इवन एज वेल। अगर हम क्वेश्चन बैंक्स को देखें तो यहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि क्वेश्चन बैंक्स में ये टॉपिक जो है दैट हैज़ बिन गिवन मल्टीपल टाइम्स। और अगर हम देखें क्वेश्चन बैंक मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ, जिससे आपको मज़ीद चीज़ों की क्लैरिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम जस्ट आई एम गोइंग टू बी टेकिंग 1 minute ऑफ ब्रेक सो दैट आई कैन डिस्प्ले द relevant things in front of you so that you can understand that betterly। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो infographics are going to help us a lot in this thing। यहाँ पर बेटे अगर हम रिज्यूम करें अपने डिस्कशन को, we can see on your display screen that almost 6 times, 5 to 6 times, a 14 marker question has been given on the round table conferences। और क्वेश्चन क्या है, how successful were the 3 roundtable conferences of 1930 1932? Explain your answer. The second type of statement which was been given by Cambridge examiner was, what extent did the roundtable conferences provided a solution to the government of India? Explain your answer. The third type of statement which was been given in the Cambridge exam by your Cambridge examiner was, the roundtable conferences of 1930 achieved very little. Reasons why you might both agree or disagree with this statement. And in a 7 marker question, you have been given, why was the second roundtable conference of 1931 unsuccessful? Roundtable conference has been always a favorite topic of your examiner। अगर हम ये जो प्रायोरिटी लेवल इंडेक्स है उसको देखते हैं, यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके पास 5th नंबर पे आता है इस लिस्ट में, और 12 साइटिंग्स हैं आपके पास पेपर्स के अंदर फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। तो ये चीज़ हमारे पे एक लाइबिलिटी बनाता है कि हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज को बहुत अच्छे से करना है। इधर इट्स अ 4 marker क्वेश्चन, इधर इट्स अ 7 marker क्वेश्चन, इधर इट्स अ 14 marker क्वेश्चन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज आर गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल इन डिसाइडिंग योर चैप्टर नंबर 8 फ्यूचर। अब बेटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक से, तो हमें आइडिया होता है
कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हमें ये चीज़ फॉलो करनी है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की पॉजिटिव क्या थी, नेगेटिव क्या थी, क्या सक्सेसेस हुई, क्या फेलियर्स हुए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है दैट इज़ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली थी क्या। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो आप वो फ्रेमवर्क है जो हर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करोगे, कि सबसे पहले तो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर वन को फॉलो करोगे, एंड दैट इज़ के व्हाट वर द की डेवलपमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग इनटू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। फिर आप सेकंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फॉलो करोगे, दैट इज़ हाउ दोज डेवलपमेंट्स वर कंट्रीब्यूटिंग or impacting the creation of Pakistan during the phase when they were been occurring and part of the Indian history under the British rule। तो यहाँ पर जब देखते हैं बेटे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो वी हैव टू स्टार्ट विद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी क्या। उसके बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिग आउट फर्दर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लेवल तक सक्सेसफुल थी, क्या इनके पॉजिटिव आउटकम्स थे, क्या इनके जो हैं वो फेलियर्स थे, क्या इसके बाद के इम्पैक्ट्स थे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले तो देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी। यहाँ पर बेटे इस इन्फोग्राफ पे वी कैन सी 1930 से 1932 तक ब्रिटिश हेल्ड थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन इंग्लैंड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रॉयल गैलरी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस है, उसको रॉयल गैलरी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। यहाँ बेसिकली हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपका जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो अपर हाउस है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाज द रॉयल गैलरी वाज द डेस्टिनेशन वेयर ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडिया वर बीन gathered for discussing the future reforms in subcontinent's history। एजेंडा ये था कि वही क्वेश्चन हाउ इंडिया शुड बी गवर्नड दैट मस्ट बी आंसर्ड। और इसके लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है रैमसे मैकडोनल्ड्स जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उनकी लीडरशिप के अंदर। और ये ब्रिटिश जो क्राउन है उसकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो कंडक्ट की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन वाज आल्सो वरीड कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इंडिया सिंस 1905, और कोई भी स्टेबल सोल्यूशन नहीं आ रहा इंडियन गवर्नेंस के इशू का। और ब्रिटिश के कंसर्न्स ये थे कि जो उनके कॉलोनियल इंटरेस्ट थे दे कुड बी डैमेज अगर इंडिया इसी तरह से पॉलिटिकली इग्नोर्ड रहा, या फिर दोबारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी सिचुएशन इंडिया में उनको फेस करनी पड़ सकती है अगर इंडिया की गवर्नेंस का जो इशू है वो रिजॉल्व ना हुआ। तो इसी कंसर्न्स ने ब्रिटिश क्राउन के रैमसे मैकडोनल्ड्स जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1930 के, उनको ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करने का डायरेक्टिव जारी किया। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर आप अपने इन्फोग्राफ पे देखो 1930 में 12 नवंबर से 19 जनवरी 1931 तक हुई। ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए निगोसिएशंस होती रहीं इंग्लैंड में, जिसमें आपके मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियन बिजनेस एंड लेबर ग्रुप्स थे, हिंदूज थे फ्रॉम शेड्यूल्ड क्लास, और मुस्लिम्स थे बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम लीग्स डेलीगेशन एंड द अदर बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स मेंबर इवन एज वेल। ऑलमोस्ट 80 प्लस डेलीगेशंस ने इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो इसका सबसे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट रहा वो ये रहा कि जो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो मेजॉरिटी थी या सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज नॉट participating in this roundtable conference। Gandhi was on non-cooperation movement, and because of that he was never ready to be part of any initiative by the British। और गांधी की जो एब्सेंट है दैट वाज द मेन फैक्टर दैट वाई द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट दैट फ्रूटफुल। डेफिनेटली जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी थी इंडिया में, पॉलिटिकल रियलिटी थी इंडिया में, दे वर हिंदूज, एंड हिंदूज वर मोस्टली लेड बाय आईएनसी। तो जब आपके लेट सपोज ए क्लास में 80% स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे और 20% स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, तो जो भी लेसन डिलीवर किया जाएगा वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा एज अ क्लास जब तक कि मेजॉरिटी प्रेजेंट ना हो। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी दैट वाज बीन हेल्ड फ्रॉम 12 नवंबर टू 19 जनवरी। और इसका जो रीजन ऑफ फेलियर आप लिखोगे, examiner will ask you in a 7 marker question that why there were like three roundtable conferences or why you consider the roundtable conferences as unsuccessful। तो उसमें आप यही बताओगे कि in the first roundtable conference 85 plus delegations were being invited by the British government in England for discussing the future reforms
एंड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ इंडियन गवर्नेंस दैट हाउ इंडिया शुड बी गवर्नड, तो इसमें जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ऑफ इंडिया था दैट वाज आईएनसी, द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रियलिटी इन फैक्ट ऑफ इंडिया, that was absent. Gandhi was on his non-cooperation movement, and he was jailed by the British even as well as he was leading multiple anti-British movements in India during that phase of Indian history from 1925 to 1930 almost. अब गांधी की जो एब्सेंट थी दैट वाज अ ह्यूज अपसेट फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर वन। लेकिन इसमें जो है वो बेसिकली पॉइंट्स जो डिस्कस होना थे या पॉइंट्स जो डिस्कस हुए देवर के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए या वीक सेंटर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इस बात को डिसाइड करना था। दूसरा, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों, जॉइंट इलेक्टोरेट्स हों, किस कम्युनिटी की कितनी रिप्रेजेंटेशन हो, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द एजेंडा और द मिनट्स ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो सबसे पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिलती है दैट इज़ के जो प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर, जो डिफरेंट राजा और महाराजा डिफरेंट एरियाज को रूल किया करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स आप समझ लें कि इंडिया की लेगेसी थी, हिस्टोरिकल लेगेसी थी, और 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में एग्जिस्ट करती थी 562 के अराउंड। ये प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे दे एग्रीड टू जॉइन फेडरेशन अगर ब्रिटिश फेडरेशन सिस्टम को या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं आफ्टर दी successes or the failures of the round table conference or in the future proposals of the constitutional reforms। तो इसमें प्रिंसली स्टेट्स का काफ़ी पॉजिटिव रोल था, और मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स ने इस बात पे एग्री किया कि अगर फेडरेशन जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, तो प्रिंसली स्टेट्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा कि ऑल ऑफ दी या टू व्हाट एक्सटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर बीन सक्सेसफुल, तो आप दो वे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो आप तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे एक एक पैराग्राफ बनाएं, पहले आइडेंटिफाई करें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वन क्या थी, टू क्या थी, थ्री क्या थी। उसके बाद आप उसकी प्रोसीडिंग्स लिखें कि उसमें क्या अचीव हुआ या क्या उसकी फेलियर के रीजंस बने, तो दैट वुड बी ऑटोमेटिकली योर आंसर ऑफ 14 मार्कर क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए अभी, कि 14 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली हाउ सक्सेसफुल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर पूछता है आपसे ना। तो अगर टू व्हाट एक्सटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर सक्सेसफुल या कोई भी ऐसी बात आपसे वो पूछता है, आपने उसमें सिंप्लीफाइड वे में दो वेज को आप यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। एक तो वो मैंने बता दिया कि आप तीन पैराग्राफ बना सकते हो, और तीनों पैराग्राफ्स में आप क्या कर सकते हो कि हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एनालिसिस है आप एक एक पैराग्राफ में कर सकते हो, और तीन पैराग्राफ बनाकर तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस कर सकते हो। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप पहले जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ दी लिख सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। फिर आप तीनों के जो हैं वो फेलियर्स के रीज़न तीन सेपरेट पैराग्राफ्स में भी लिखकर एंड पे कंक्लूजन दे सकते हैं। So there are two ways to answer such questions, and you can be easily able to answer such questions if you have practice of solving and dealing with your question bank। जैसे ये देखिए आपके सामने मैंने ये क्वेश्चंस शो कर रखे हैं आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, और आपके पास चार वेरिएंट्स हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको इस तरह के थ्री डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखें, वाई वर देयर थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड 1930 टू 1932। इसमें जो मैंने आपको बताया कि मेजर जो एजेंडाज थे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, कितनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी भी कम्युनिटी को, रिलीजियस लिबर्टी कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड की गई या बेसिकली ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद सेकंड के बारे में आप लिख सकते हो कि फर्स्ट जो थी वो दैट वाज अ फेलियर, और उसमें जो आईएनसी की नॉन पार्टिसिपेशन थी उसने उसकी जो एसेंस थे या उसकी जो स्पिरिट थी उसको डैमेज किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो उसको ओवरकम करने के लिए और एक कंक्लूसिव रिजल्ट निकालने के लिए 1931 में जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर टू की गई। इसमें थोड़ी सी बेहतर डेवलपमेंट्स हुई, ब्रिटिश ने एग्री किया कि दे आर गोइंग टू फॉर्म न्यू प्रोविंसेस इन इंडिया, एंड बॉम्बे एंड लाइक सिंध इज गोइंग टू बी सेपरेटेड। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और कम्युनल अवार्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक सक्सेस नजर आती है आफ्टर इमीडिएटली द फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1931 एंडेड। तो
अभी भी लेकिन एक comprehensive solution of India was not been given. So the third roundtable conference was been held in 1932. 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर, बट इसकी भी जो आउटकम थी दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया ऑन द सेम पैटर्न्स एज दे डिड इन मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और द रोवर्ट सॉरी द मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज आर ऑलवेज बिन सिग्निफिकेंट फॉर योर असेसमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 8. और अगर आपको बेटे वो सक्सेसेस और फेलियर्स के बारे में पूछते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, तो आपको हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सक्सेस पता होनी चाहिए. जैसे पहली की थी कि प्रिंसली स्टेट्स ने एग्री किया, दूसरी की थी कि कम्युनल अवार्ड्स आए इसके बाद, और बॉम्बे और सिंध को सेपरेट करने का भी डिसाइड कर लिया. न्यू प्रोविंसेस के लिए भी ब्रिटिश वर एग्रीड अपॉन इट. सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए भी ब्रिटिश ने काफ़ी हद तक जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस शो की. और रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंडिया में प्रोविंसेस के लेवल तक भी ब्रिटिश रेडी थे लेके आने के लिए. और रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो लोगों के इलेक्शंस के थ्रू आए, इसकी तरफ भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलती है. तो अब थर्ड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फेलियर क्या आया, या क्यों सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी दैट वाज अ लिमिटेड सक्सेस फॉर द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. द रीजन वाज वंस अगेंस्ट गांधीज एटीट्यूड एंड आईएनसी's बिहेवियर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. बेटे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो गांधी जो है दैट वाज लीडिंग आईएनसी. फर्स्ट में तो ये थे ही नहीं. फर्स्ट में तो गांधी बायकॉटेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड आईएनसी नेवर शोड अप. इवन जो हिंदू कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स थे देवर देयर, जिनको शेड्यूल्ड क्लासेस कहते हैं या डिप्रेस्ड क्लासेस कहते हैं. लेकिन बड़ी जो पार्टी थी दैट वाज बिन मिसिंग, और यही मेजर रीज़न बनी कि कोई मजीद कंक्लूजन या मजीद पॉजिटिविटी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से नहीं आई थी. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज देयर, और गांधी जो था दैट वाज द ओनली कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हु वाज देयर. Muslim League was also there, Jinnah was present there, princely states were there, European business and other groups were there, Sikhs were there, liberals, Indian liberals were there. So most of the stakeholders were there. लेकिन गांधी ने इसमें भी जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट की, और 7 सितंबर से 1 दिसंबर ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स दोबारा ब्रिटिश ने इन्वेस्ट किए इंडिया के इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने में कि हाउ इंडिया शुड बी गवर्नड. एंड द एंड क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि गांधी ने ये स्टैंड लिया कि जब आईएनसी इज देयर, सो देर इज नो नीड फॉर एनी अदर पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ऑफ इंडिया टू बी प्रेजेंट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज एज पर गांधीज व्यू कांग्रेस वॉज रिप्रेजेंटिंग एवरी वन फ्रॉम इंडिया. गांधी का यही प्रॉब्लम था कि वो ये समझते थे कि कांग्रेस के होते हुए किसी और पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हर इंडिया की जमात, हर इंडिया के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी रखती है. तो ये गांधी का जो स्टैंड पॉइंट था, इससे जो है वो कॉन्फ्रेंस में जो अदर पार्टिसिपेंट्स थे दे फेल्ट डिस्करेज्ड. और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कुछ कंक्लूजन्स के साथ ख़त्म होगी. जैसे सबसे बड़ा कंक्लूजन इसका ये आया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं वो इंडिया में बेस्ट सिस्टम है जिसके थ्रू हम इंडिया की गवर्नेंस का इशू हल कर सकते हैं. फिर प्रोविंशनल ऑटोनमी ब्रिटिश एग्रीड, और रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट्स देने का ब्रिटिश ने जो है वो बेसिकली एक समझ लें कि आप ग्रीन सिग्नल दिया. और इसके अलावा प्रोविंशनल बाइफर्केशन, मजीद प्रोविंसेस बनाना, सिंध और बॉम्बे को सेपरेट करना, जो जिना के 14 पॉइंट्स में भी था, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश. लेकिन गांधी का जो एरिगेंट एटीट्यूड था, और गांधी ने इसी के बाद फौरन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनाउंस कर दी, और दोबारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही वाज एब्सेंट. इवन गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब पहुंचे तो ही वाज बीन गिवन bail from the jail, as in 1930 he was on non-cooperation movement and he was been jailed by the British police in India. तो लॉर्ड अर्विन जो वाइस रॉय थे 1930 से 1933 तक इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के दरमियान, मेनली उनसे गांधी का एक मुआहदा होता है, और इसी कंडीशन पे गांधी को बेल मिलती है कि गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 में जाएंगे और ब्रिटिश की जो इनिशिएटिव है उसको पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे, और इंडिया का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हिंदूज अपनी जो है वो बेसिकली जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे. लेकिन गांधी जब वहाँ पहुँचे, गांधी ने वहाँ पर जाकर जब अपनी रिप्रेजेंटेशनल जो अथॉरिटी है उसको
क्लेम किया, तो इससे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी एक लिमिटेड लेवल की सक्सेस आई, एंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंडेड विद द कम्युनल अवार्ड्स ऑफ 1932। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको नजर आती है इंडिया में 1932 में, और दैट वाज बिन देयर 17th नवंबर टिल 24th दिसंबर। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें लाइक आप समझ लीजिए कि इट वाज अ टोटल फेलियर। और इसकी मेजर रीजन ये थी कि गांधी वंस अगेन वाज ऑन हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी ने गांधी अर्विन पैक्ट को भी रिस्पेक्ट ना दी, और मुश्किल से लाइक कुछ मंथ्स तक गांधी अपनी बात पे कायम रहे, and once again he started agitation against the British rule. Or Jinnah was not even been invited in the third round table conference because Jinnah used to never accept the biased attitude of INC or the authoritative attitude of the British towards the Muslim community of India. जिन्ना को वो प्रॉब्लम मेकर कहते थे ब्रिटिश, या ट्रबल मेकर कहते थे। जिन्ना वाज नॉट इनवाइटेड इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली फेल्ड लार्जली, और इसमें फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स किया गया। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस वाज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स वर बीन डन, माइनॉरिटी सेफगार्ड्स पे बात हुई। और जो आउटकम आई दैट वाज बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कम्युनल अवार्ड की मेजोरिटी 1932 में। मैं क्यों कम्युनल अवार्ड्स को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आउटकम कहता हूँ, क्योंकि थर्ड राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कुछ ऐसा पॉजिटिव हुआ ही नहीं था जिसकी वजह से हम कम्युनल अवार्ड्स को उसका इम्पैक्ट कह सकें। तो मोस्टली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो इम्पैक्ट था, दैट वाज बिन रिफ्लेक्टिंग इन द कम्युनल अवार्ड्स ऑफ 1932। अब यहाँ पर बेटे ये तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ख़त्म हुई, लेकिन स्टिल ऐसा कोई यूनानिमस जो डिसीजन था दैट वाज नॉट बीन टेकन about the single question, and that was how India should be governed. Even though limited successes were there, जैसे मैं आपको दोबारा बता दूं कि क्या इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की सक्सेसेस थी। एक तो जो है वो सक्सेस थी कम्युनल अवार्ड। जब भी आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वो सक्सेस पूछेगा तो आप उसके अंदर कम्युनल अवार्ड्स ऑफ 1932 बताओगे, इवन दो दे वर रिजेक्टेड बाय आईएनसी। बट जिन्ना एंड सम ऑफ द लीडर्स हु आर देयर, दे हैड एग्रीमेंट विद द कम्युनल अवार्ड्स, क्योंकि इसमें उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जा रहा था और न्यू सूबे बनाए जा रहे थे। बॉम्बे और सिंध को सेपरेट किया जा रहा था, एंड डब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को भी चांसेस थे कि न्यू प्रोविंसेस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कम्युनल अवार्ड्स में आपके पास जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको भी कंसिडर किया गया था कि दैट शुड बी द राइट ऑफ अदर कम्युनिटीज़ टू हैव रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। And this was what we were been supporting since Jinnah's 14 points and the Delhi Muslim proposals. तो ये किसकी आउटकम थी। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स का एग्री करना फेडरेशन को ज्वाइन करने में, अगर इंडिया में फेडरेशन आती है तो ये एक पॉजिटिव होप थी। फिर ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट्स को इंडिया में अनाउंस करना कि इंडिया में भी प्रोविंसेस के अंदर भी रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट्स होंगी, जो लोकल लोग इंडिया के वोट करके सेलेक्ट करेंगे फॉर देयर ओन प्रोविंसेस टू लीड देम इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश सेंटर। तो यहाँ पर ये आउटकम्स थी, लेकिन लार्जली ये फेल क्यों हुई। फेल इसलिए हुई कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी वाज नॉट देयर। सेकंड में गांधी अर्विन पैक्ट के थ्रू आईएनसी वाज देयर इन फॉर्म ऑफ गांधीज प्रेजेंस, लेकिन गांधी ने रिजेक्ट किया अदर कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करने पर, जिसकी वजह से सेकंड भी फेल होगी। थर्ड, दोनों ही मेन स्टेक होल्डर्स मिसिंग थे। जिन्ना फ्रॉम मुस्लिम लीग वाज मिसिंग, and INC was not participating in it. They all once again announced its boycott and went for the non-cooperation once again. So third failed because of this. तो ये बेटे एक बड़ा ब्रीफ और बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है डिस्कस करने का। और 1932 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आया 1935 के अंदर, और कम्युनल अवार्ड्स जो आए 1932 के अंदर, ये इनकी मेनली आउटकम्स थी। ये आपको इसमें याद करना पड़ेगा। कम्युनल अवार्ड्स आपको 4 मार्कर क्वेश्चन में आ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक डिफरेंट टॉपिक है, 1935 की डेवलपमेंट है। डेफिनेटली दैट विल बी इंपॉर्टेंट इनफ फॉर यू इन द फ्यूचर एग्जाम्स। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं बेटे, हाउ सक्सेसफुल वर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी क्या। तो दैट वाज अ ब्रिटिश इनिशिएटिव टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ इंडियन गवर्नेंस, एंड दैट वाज द question in detailed way or in a simplistic way, that was how India should be governed.
तो इसको आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ब्रिटिश ने दोबारा आंसर करने की कोशिश की बाय कॉलिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 85 प्लस डेलीगेशंस इंडिया से वहाँ पहुँचते हैं इंग्लैंड। वहाँ पर 3 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मंथ्स ऑफ डिस्कशन होती है, और सारे प्रपोजल्स को ब्रिटिश रिव्यू करते हैं कि क्या ऐसा फाइनल सॉल्यूशन पैकेज होना चाहिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो सबके इंटरेस्ट को मीट करता हो। लेकिन कुछ सक्सेसेस हुई, कुछ फेलियर्स हुए, जो कि आपको याद करके अपने क्वेश्चन में आंसर करने होते हैं। आप हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वन, जैसे मैं लेट सपोज अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर वन या टू पे पैराग्राफ लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि स्टार्ट में मैं लिखूंगा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन 7th September and lasted till 1st December 1931. In this roundtable conference, Ramsay MacDonald was leading the British delegation, and we were being represented by Muhammad Ali Jinnah and his team, like Maulana Muhammad Ali Johar, Shaukat Ali Johar, Sir Aga Khan, और आईएनसी जो थी दैट वाज बिन लेड बाय महात्मा गांधी। और इसमें सक्सेस ये हुई कि ब्रिटिश ने प्रोविंसेस को जो है वो न्यू शेप देने का जो है वो इरादा किया, और बम्बई और सिंध को जो है वो सेपरेट प्रोविंस कंसिडर करने का प्रॉमिस किया इन द कमिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज फॉर इंडिया। फिर प्रोविंस जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उसको एक्सेप्ट किया कि प्रोविंसेस के लेवल पर जो है वो एक इलेक्टोरल किस्म की जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और इलेक्शंस के थ्रू इंडिया के लोग जो हैं वो अपने प्रोविंसेस के मैटर्स के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकें। दैट वाज बीन कमिटेड बाय देम। तो इसमें जो है वो बेसिकली आप सिंप्लीफाइड वे में बताओगे, दिस वाज बीन डन इन द बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और इसके अंदर जो मेनली चीज़ है वो ये है कि आपकी ये आपने पहले सक्सेसेस बता दी, ठीक है, और उसके बाद फेलियर की रीज़न बता दोगे उसी पैराग्राफ में कि गांधी डिनाइड द एक्सेप्टेंस ऑफ द राइट्स ऑफ अदर कम्युनिटीज़ टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से जो है वो बदमज़गी पैदा हुई। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आल्सो एंडेड इन 1931 व्हिच गिव द वे टुवर्ड्स द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें इस तरह से आप 3 पैराग्राफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे बना सकते हो। अगर ये फॉर्मेट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो पहले सक्सेसेस पे एक व्यू ए बना सकते हो, और फिर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के फेलियर्स के रीजंस पे 3 सेपरेट पैराग्राफ्स बना के एंड पे कंक्लूजन लिखोगे कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बुरी तरह से आईएनसी एक्सपोज हुई मुस्लिम लीग के सामने और मुसलमानों के सामने कि दे विल नेवर लेट अस हैव व्हाट वी शुड बी हैविंग इन सब कॉन्टिनेंट एंड व्हिच इज गोइंग टू हेल्प अस टू गवर्न आवरसेल्फ इन अ प्रॉपर वे। उसके बाद फिर इंडिया की गवर्नेंस का इशू जो है दैट वाज शेकी, दैट वाज नॉट बीन गिवन एनी प्रॉपर डायमेंशन और डायरेक्शन, और हाउ इंडिया शुड बी गवर्नड वाज स्टिल इन कंफ्यूजन। थर्ड ये हुआ कि इलाहाबाद एड्रेस नज़र आता है 1930 का, जिसमें इलामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के 21st सेशन को लीड करते हुए 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद शहर के अंदर पाकिस्तान का जो एक रफ आइडिया है, रफ स्केच है, वो देते हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कैसे वो डिस्कस करते हैं। इसके लिए आई एम गोइंग टू बी मूविंग टुवर्ड्स द इलाहाबाद एड्रेस, जो इसकी आउटकम भी है और इसका इम्पैक्ट भी है। इलाहाबाद एड्रेस क्या था जी? आपकी डिस्प्ले स्क्रीन माइट यू आर गोइंग टू बी एबल टू ऑब्जर्व इट योर डिस्प्ले स्क्रीन। इकबाल की जो है ना बेटे, वो जिसे कहते हैं इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो ख्वाब जो था दैट वाज अ विजन। और वो विजन कहाँ से मिला? इलाहाबाद एड्रेस से। जब इकबाल ने जो है वो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रोसीडिंग्स को देखते हुए एक अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो मौके पर, और ये था 21st एनुअल सेशन। और यहाँ पर मेंशन भी है कि 29 दिसंबर वाज द डेट। क्या कहते हैं इकबाल? इकबाल कहते हैं इलाहाबाद एड्रेस में, द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट appears to me the final destiny of the Muslims. The proposed state to include the Muslim majority provinces of Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan. इकबाल कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल रियलिटीज़ मैं देख रहा हूँ और जो 1905 से तमाम इश्यूज लिंगर ऑन हो रहे हैं, आई कैन स्मेल और आई कैन फील दैट के इन फ्यूचर द डेडलॉक विल ब्रिंग्स द इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन टू अ वर्ज, जहाँ पर मुसलमान जो हैं they are going to have a separate homeland for them based on those areas of India where they are in majority.
ये इन्फोग्राफ मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आप इलाहाबाद एड्रेस के नाम से जानते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, चैप्टर नंबर 8 में आ सकती है। इसने एक विज़न दिया मुसलमानों को कि व्हाट वुड बी देयर अल्टीमेट सॉल्यूशन। के इम्पैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत एवरलास्टिंग थे। ये बेसिकली मुसलमानों को एक न्यू, जिसे कहते हैं, वो पर्सपेक्टिव दिया उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का। मुसलमानों को एक पर्पस ऑफ स्ट्राइविंग और पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस दिया अगेंस्ट द हिंदूज। और यही जो विजन था जिन्ना का, इकबाल का, सॉरी, वो जिन्ना ने एक्सरसाइज किया 1940 के बाद, और पाकिस्तान 1947 तक बना। जिन्ना ने जो है वो इस इलाहाबाद एड्रेस को एक प्रैक्टिकल शेप दी, जो विजनरी अप्रोच थी इलामा मोहम्मद इकबाल की। और इस डेवलपमेंट को इंडीड इलाहाबाद एड्रेस कहते हैं, जिसने मुसलमानों को ना सिर्फ इकट्ठे किया, यूनाइट किया, बल्कि एक परमानेंट सोल्यूशन दिया मुसलमानों की इन तमाम प्रॉब्लम्स का दे वर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल इन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर ये इलाहाबाद एड्रेस बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद 1933 में इससे भी बड़ी डेवलपमेंट हुई, जब एक स्टूडेंट लीडर चौधरी रहमत अली, जो खुद लॉ के स्टूडेंट थे, उन्होंने नाउ और नेवर का एक बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया और मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की, जब ही नेम्ड दैट विजन ऑफ इकबाल एज पाकिस्तान। जो इकबाल ने बेसिकली विजन देखा था, उसको एक प्रॉपर शेप दी चौधरी रहमत अली ने। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का जो नाम है वो कायम किया, कि जो इकबाल ने जिस स्टेट का विजन दिया है, जिसके बारे में इकबाल ने कहा है कि लाइक दे आर गोइंग टू बी हैविंग अ कंसोलिडेटेड स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन दोज प्रोविंसेस वेयर दे आर इन मेजॉरिटी, लाइक पंजाब, केपी, एंड लाइक मॉडर्न डे केपीके, दैट वाज एनडब्ल्यूएफपी इन द ब्रिटिश एरा, और बलूचिस्तान एंड सिंध। तो ये जो विजन था इकबाल का, उसको अब एक नाम मिलने जा रहा है, एंड दैट नेम वाज गोइंग टू बी पाकिस्तान। ये बेसिकली बेटे चौधरी रहमत अली का विजन जो था नाम के कॉन्टेक्स्ट में, इकबाल का जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको अब एक प्रैक्टिकल जो है वो नेम मिलने जा रहा था 1933 के नाउ और नेवर में। तो नाउ और नेवर वाज इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज नाउ दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू बी गिवन अ नेम इवन एज वेल। और ये जो पम्फलेट था, व्हाट वाज द नाउ और नेवर, ये चौधरी रहमत अली के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा कि इट वाज अ पम्फलेट रिटन बाय चौधरी रहमत अली, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। जो हाल हिंदूज हमारा कर रहे हैं पॉलिटिकली, पिंग पोंग में इन्वॉल्व है हमारे साथ, अगर मुसलमान अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पॉलिटिकल जो है वो लाइफ कंसोलिडेटेड वे में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पे मुसलमानों को बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर और ये जो रीजन्स जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, उनकी बेस पर एक मुल्क बनाना चाहिए, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान तजवीज़ किया। इवन दो जो इसके ओरिजिनेटर थे वो चौधरी रहमत अली नहीं थे, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने वाले और फ्लोट करने वाले चौधरी रहमत अली थे। तो पाकिस्तान का जो आइडिया है, ये वह बेसिकली आइडेंटिटी पाकिस्तान की जो है उसको देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब चौधरी रहमत अली के नाउ और नेवर के बाद 1933 से हम मूव करते हैं 1935 तक। और 1935 में नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर मेजर डेवलपमेंट इन द पाकिस्तान मूवमेंट, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश ने ऑन द सेम पैटर्न्स एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया इंडिया का। और इसको बेसिकली हम बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसमें जो है वो वही प्रपोजल्स जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए, वही प्रपोजल्स जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डिस्कस हुए, वही प्रपोजल्स जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में डिस्कस हुए, उन्हीं को एक न्यू, एडवांस और मॉडिफाइड वे में प्रेजेंट किया ब्रिटिश ने, टू सेटिस्फाई द क्वेश्चन दैट हाउ इंडिया शुड बी गवर्न। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या था। इट वाज द रिफॉर्म पैकेज, इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, विच ब्रिटिश फाइनली गेव टू मैनेज द क्वेश्चन हाउ इंडिया शुड बी गवर्न। और अभी तक आप देख रहे हो कि 1935 तक हम पहुंच चुके हैं, 12 साल रह गए हैं पाकिस्तान के बनने में। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिजेक्ट कर दिया गया, और गांधी ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा है इसको,
मुस्लिम लीग को भी कुछ रिजर्वेंस थी, लेकिन मोस्टली मुस्लिम लीग वाज एग्रीड अपॉन द डिफरेंट टर्म्स ऑफ दिस, क्योंकि अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इतनी सीरियसली काम नहीं कर रही थी, जो कि उन्होंने 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बाद शुरू किया। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में जो वर्दा स्कीम आई, जो वंदे मातरम, जो विद्या मंदिर स्कीम, जो विक्टिमाइजेशन मुसलमानों की देखने में मिलती है, उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दी कि मुसलमानों को अब पाकिस्तान की तरफ ही जाना है, उस पाकिस्तान की तरफ जिसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में प्रेजेंट किया, उस पाकिस्तान जिसका विजन इकबाल ने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के कॉन्टेक्स्ट में या उसको उनकी जो है वो फेलियर्स को देखते हुए जो है वो मेंशन किया। अब वो जो पाकिस्तान है वो 1937 के बाद बहुत क्लियर होकर सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस टायरनी वाज द मेन एंड डिसाइसिव फैक्टर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जब आईएनसी को मौका मिला इंडिया को रन करने का, तो आईएनसी ने अपना एजुकेशनल एजेंडा, अपना लिंग्विस्टिक एजेंडा, अपना रिलीजियस एजेंडा, अपना इकोनॉमिक एजेंडा खुल के प्रेजेंट किया और खुल के मुसलमानों को डिग्रेड किया इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो ब्रिटिश है उनके अगर हाथ से इंडिया जाता है तो और हिंदूज के हाथ में इंडिया आता है तो क्या मुसलमानों का फ्यूचर है, उसका एक बहुत ब्रॉड डे लाइट जो है वो बेसिकली मुसलमानों को एक विजन मिला कांग्रेस टायरनी से। सो लाइक ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो इवेंचुअली पाकिस्तान की क्रिएशन में बहुत डिसाइसिव थी। और आज का जो हमारा सेशन था दैट वाज मेनली फोकस्ड ऑन 1930 टू 1935, जिसमें कांग्रेस रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्शंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। 1937 के इनके लिए मैंने आपको रीडर्स दिए हैं, आपने इनको टेस्ट में फ्राइडे के प्रिपेयर करके अपीयर भी करना है। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो टॉपिक है बेटे जो कि 13 12 टाइम्स आपके एग्जाम्स में आ चुका है, और आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ डिलीवर करना है। ये इलाहाबाद एड्रेस है, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कलेक्टिवली आपको सम टू सम एक्सटेंड कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे टू आंसर द थिंग्स इन अ more broader way and more comprehensive way. So I hope that this session is going to help you to understand the things more comprehensively. और 1939 तक हम इस चैप्टर में पहुंचते हैं, और 1939 तक आप देखते हो कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सोल्यूशन इंडिया का सामने नहीं आता जिससे पाकिस्तान मूवमेंट को हॉल्ट मिले, ब्रेक मिले या कोई डिस्करेजमेंट मिले, बल्कि ऐसे मूवमेंट्स, ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को फर्दर इन्हेंस किया, फर्दर कंसोलिडेट किया मुसलमानों के बिलीव्स को कि देयर एग्जिस्टेंस अंडर द हिंदू लेड इंडिया इज नेवर पॉसिबल, और ब्रिटिश is not in position to resolve the problems of Indian governance, ये भी एस्टेब्लिश किया। तो आपको बेटे क्वेश्चन बैंक्स हेल्प आउट करेंगे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, आपको ये इन्फोग्राफ्स हेल्प करेंगे, आपको नोट्स हेल्प करेंगे जो मैंने आपको क्लास में डिलीवर किए हैं। लेकिन ये चीज़ें समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ ऑल अबाउट, एंड दिस इज़ व्हाट सेक्शन 2 इज़ ऑल अबाउट, which is based on the idea that how Pakistan was been achieved by the Muslims of India in 1947। और मैंने आपसे बहुत दफ़ा ये बात क्लास में भी डिस्कस की, मैं इस लेसन के एंडिंग पार्ट में भी डिस्कस करता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, तो योर आंसर मस्ट बी वेरी स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर that Pakistan was created as an end result of various political developments which took place in Indian history from 1905 to 1947. Among them, the developments like Round Table Conferences, Now or Never, Allahabad Address, Government of India Act, Congress Tyranny, Elections of 1937, Rejection of the 14 Points, Floating of the Nehru Report, Delhi Muslim Proposals Rejection. These all events were the monumental ones. This is the stage when Pakistan movement got maturity, and now we are going to complete it. And after that, we are going to enter the last decisive years of the Pakistan movement, which are from 1939 to 1947, in which we are going to create Pakistan, inshallah. The point is, bete, we are part of a very glorious struggle, evolutionary struggle, in which these events played a very important role. In तमाम के तमाम events के जो impacts थे, they were similar almost. They united us. They gave us a political vision. They gave us a reason to resist. They gave us a reason to stand for the uplift of the Muslim community. They exposed Hindus. They exposed British. So this is how we got independence. This is the end of the session. Inshallah, we'll be responding back with chapter number 9 and 10 of this section in the coming weeks. Till then, अपना ख्याल रखिएगा and be
prepared for your future challenges, because these things are going to help you to be best candidate of Pakistan studies in the future exams. दो assessment objective में हम पूरा section 2 clear हो सकता है. What were the key developments creating Pakistan? How they were creating Pakistan. That's it for the day. Keep shining and stay blessed. We'll see you in the next lesson very soon. Allah Hafiz.